جی جی پریس ریلیز پڑھنے لگے ہم. جی 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 آپ سے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر پاکستان کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف فلمز ہے، مطلب ٹوٹل جو بھٹے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ایک این جی او ہے تو آپ لوگوں کے پاس اسٹیٹس بھی ہوں گے، کتنی اس ٹائم پر بھٹے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر کتنے بھٹا مزدور جو ہے وہ اس ٹائم پر مجموعی طور پر کام کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان کا فکر نہیں ہے تو مطلب پنجاب کے اندر. جی جی ہمارے پاس ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. تقریباً 19,000 بھٹے ہیں پنجاب کے اندر اور اکراس پاکستان اس سے زیادہ ہے. اس کے اندر ان بھٹوں کے اندر کتنے مزدور اس ٹائم پر کام کر رہے ہیں، اور جو مزدور کام کر رہے ہیں ان میں سے باؤنڈیڈ لیبر کتنی ہے؟ جتنے بھی مزدور کام کر رہے ہیں کم و بیش اس میں جو ہے 5 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ باؤنڈیڈ لیبر کی شکل میں کام کر رہے ہیں، مزدور کی شکل میں کام کر رہے ہیں، اور 5 ملین. اور اس کے علاوہ بٹے پر رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ پیشگی دی جاتی ہے، اور پیشگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس کام کرنا ہے. اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو قانون کے مطابق جو ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اس پہ آرڈر بھی ہے، لا بھی ہے کہ آپ کسی بندے کو پیشگی دے کر کسی کو اپنا باؤنڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ مجبور ہو جاتے ہیں جب پیسے دے دیتے ہیں تو وہ بھٹے پر کام کرنے والے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے. 50 لاکھ میں سے ایسا باؤنڈیڈ لیبر کا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ 50 لاکھ ایک اندازے کے مطابق ان بٹوں پہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے کیا نمبر ہے جو کہ باؤنڈیڈ لیبر میں آتا ہے؟ جو ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہم خدمت کر رہے ہیں، جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہم نے دیکھا ہے وہاں سے 70% جو لوگ جو ہیں ہمارے ہم نے جو دیکھے اپنی جو ہے وہ باؤنڈری لیبر کی صورت میں کام کرتے ہیں. ہم تقریباً 16 بٹوں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارے اسکول ہے، وہاں پر ہم نے میجورٹی لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے پیشگی لی ہوئی ہے اور وہ باؤنڈ ہے وہاں پر کام کرنے. دو کوشچن میں آپ سے مزید کرنا چاہوں گا، ان کے اندر بچوں کی تعداد کتنی ہے، اور دوسرا ایک اور میرا جو ایک اہم کوشچن ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے جتنے بچے یہاں پہ پیش کیے، جتنے ٹیچر یہاں پہ ہیں، یہ بڑا مالکان جن کے خلاف آپ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں. نہیں ہماری کسی بٹا مالکان کے خلاف نہیں ہے، ہماری جو وومن رائٹس کے حوالے سے ان کی بہتری کے لیے ہے. ہم بھٹا مالکان کے ساتھ مل کر شراکت سے کام کرنا چاہتے ہیں. بھٹا مالکان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے بھٹے پہ آئیں اور بچوں کو پڑھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ ایک سٹیپ اور آگے چلیں، وہ کتابیں دیں، وہ بکس دیں، اور ہم اپنے ٹیچر دیں گے، وہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. ہماری جو بھٹا مالکان کے خلاف یہ نہیں کہ وہ بالکل نہیں ٹھیک کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ ہمارے ساتھ شراکت کریں. ہم دوسرے بھٹے مالکان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ایسا انیشیٹو لے جس طرح یہ 15-16 بھٹے کے لوگوں مالکان نے ہمیں اجازت دی ہے بھٹے پر آنے کی، تو ایسے ہی دوسرے بھی کریں، اپنے بھٹے کو کھولیں، ان بچوں کو بکس دیں، کتابیں دیں. ٹیچر فریڈم ٹرائل مہیا کرے گی کہ وہ جائے اور ان کو پڑھائے. ایک بات مجھے بتا دیجیے بس کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جتنے یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ چھوٹے معصوم بچے جیسے ابھی جنہوں نے اپنے بتایا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے جاتا ہے، انہیں اچھے بڑے مالکان کے بھٹوں کے اوپر جہاں جنہوں نے آپ کو اجازت دی ہے، تو کہیں یہ بتائیے گا کہ ایسے کتنے ایسے کوئی بھٹے ہیں جہاں سے آپ نے اس طرح کے بچے ریسکیو کیے ہوں؟ اگر کوئی بچے ریسکیو کیے ہیں ان کا فکر کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے بچے آپ کو ریسکیو کر چکے ہیں، کتنی ایسی باؤنڈیڈ لیبر کی جن کو آپ کی جو امریکن بیس ریسکیو ہے انہوں نے ان باؤنڈیڈ لیبر کو اپنے بٹا مالکان سے ان کا قرض دے کے لیے کسی بھی طرح سے بائی لیگل مینز ان کو چھڑوایا ہو؟ کتنے بٹا مزدوروں کے کیسز جو ہے وہ آپ لوگوں نے جیسے آپ پاس لیگل کاؤنسل بھی اویلیبل ہے، تو کس طرح کتنے ایسے مزدور ہیں جن کو لیگل کاؤنسل کے ذریعے یا اور کاؤنسل کے ذریعے آپ لوگوں نے ان کو جو ہے ان بٹوں سے بازیافت کروایا؟ بیسیکلی جو فریڈم ٹرائل کا کام ہے ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. جی آپ بھائی جان، اس میں میں ایک اور این جی او ایک سی ٹی ایس کرسچن ٹرو اسپرٹ کے حوالے سے ہے، میں ہارون رانجھا لیگل ایڈوائزر ہوں ان کا. اسی سال میں مور دین 100 پیپل ہم نے ریسکیو کیے ہیں، مور دین 100 تھرو ہائی کورٹ، جس میں نو اس این جی او کے نہیں، وہ سی ٹی ایس الگ سے جس میں ہم لیگل ایڈوائزر، یہ صرف ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے مور دین 100 پیپل، بعض لوگ ان میں سے ایسے تھے، میرے پاس ویڈیوز ہیں، جو لوگوں نے ویڈیوز بھیجی، بندے مطلب زخمی ہیں، کام نہیں کر سکتے، کرول کر رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، ان سے لوگ کام کروا رہے ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کے تھرو مور دین 100 جو ہے ہم نے ریلیز کروائے ہیں کرسچن ٹرو اسپرٹ کے حوالے سے، جو این جی او نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا آفس جو ہے بارش ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اس میں لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ صرف ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. جی ایک تو ہم ان بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کانفیڈنس جی تھینک یو. کانفیڈنس کو اپریشیٹ کرنا نہ کرنا بھی غیر مناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو
पिक्चर पेंट हुई है उसके मुताबिक सबक ने अच्छे अंदाज से याद किया। सॉरी सबक साहब ने अच्छे अंदाज से याद किया। ठीक हो। यहाँ आइन और कानून की बात और आप एजुकेशन देते हैं, यहाँ बेसिक सवाल बनते थे जिन्होंने तो कि बच्चों से हमने करने थे। जी हम बुला लेते हैं बच्चों से करने। टीचर से बात करते हैं। फिर ये बताएं कि जो सालमाना पिक्चर पेंट होती है उसमें अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर जो जुर्म है कानून के मुताबिक वो पेरेंट्स है जो बच्चों से ये काम लेते हैं। दुनिया का कौन सा कानून है, अभी आप अमेरिका से ये साहब मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में कितने पेरेंट्स ने अपने छोटे बच्चों को पैदाइशी और भी कामों में लगा देते हैं, ये जुर्म है। उस जुर्म में बजाय इसलिए कि आप उन पेरेंट्स के खिलाफ जो एक प्रिवेलिंग लॉ है उनके कानून के खिलाफ पर्चे दर्ज करना है, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। पहली बात जो है वो आपने ये किया है कि वालिदैन जो हैं वो मुजरम है, बच्चे पैदा करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। नहीं आप ये बात समझे ना, मेरी बात समझे, मैं बताता हूँ, ठीक है। जी जी बेसिकली हमारे ना वालिदैन जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी केयर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की जिम्मेदारी लें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आपके सवाल की। तो माँ बाप की जब रोजी रोटी पूरी नहीं होती, उसको जायज हक नहीं मिलता, वो मजबूर हो जाता है कि उसका कोई काम में हाथ बढ़ाए ताकि जल्दी जल्दी ईंटें बने, ज्यादा पैसे आए ताकि मैं इनका पेट भर सकूं। अगर उसको 1850 या 2350 रुपए पूरी उजरत मिल जाए तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने बच्चे को भी साथ ले जाए और काम करवाए। जब उसको 1000 मिलता है तो उसमें खाने वाले जो है तकरीबन 10 से 12 लोग होते हैं, तो वो मजबूर हो जाता है कि अपने बच्चों को अपने साथ ले जाता है। हम कह सकते हैं कि माँ बाप को भी तालीम की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजे। और हमने उन इलाकों में स्कूल बनाए हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल नजदीक नहीं है, जहां पर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के नजदीक स्कूल नहीं है, और वहां पर बच्चे जो है स्कूल वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते इसी वजह से कि हमारे बच्चे अकेले कैसे जाएंगे। ये हमारा पर्सनल तजर्बा है। आप भी समझते इस बच्चों को इस लिहाज से कि छोटे बच्चों को जो है पेरेंट्स मोस्टली चाहते हैं कि घर के नजदीक ही कोई स्कूल हो तो वहां पर भेजा जाए। तो भट्टे पर भी ये एक अलमिया है, हम समझते इस बात को कि माँ बाप जो है वो बच्चों को किसी हद तक जो है वो भी अपने इस चीज के इन्वॉल्वमेंट है कि वो भी उनको खुद तालीम नहीं दिलवाना चाहते, लेकिन उनके पीछे उनकी मजबूरियां हैं, उनकी रोजी रोटी है। जिन बच्चों को जन्म दिया है उनको खाना खिलाना है, इसलिए उनको साथ लेकर जाते हैं। तो आप सब के आने का यहाँ पे हम शुक्रगुजार हैं, और जैसा कि हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं और हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सोशल वेलफेयर वर्कर वेलफेयर के नाम से एक इदारा भी बना हुआ है, तो एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनता है उनका, और उनको हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है। उनको हेल्थ के लिए इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सहूलियत दी जाती हैं। तो हमारे जो भट्टा मजदूर हैं उनमें किसी एक को भी इस सहूलत से जो है वो आरास्ता नहीं किया गया, उनमें से किसी को भी सोशल सिक्योरिटी की तरफ से इस तरह की कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो आज हम अब लोगों का यहाँ पे जमा होने का मकसद यही है कि भट्टा मजदूरों के लिए भी इस तरह की कुछ सहूलियत होनी चाहिए, ताकि उनके लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए इसी तरह और उनके जीने के लिए, रहन सहन के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम होने चाहिए। जैसे कई दफा अगर किसी के बच्चे को काम करते हुए इतनी ज्यादा मनोमन मिट्टी होती है और उस मिट्टी में अगर कोई सांप आ गया है तो वो सांप काट गया तो फिर वहां पे इमरजेंसी फर्स्ट एड कौन देगा, और अगर वहां पे किसी बच्चे को कोई कट लग गया है तो फिर वहां पे उनकी कौन फर्स्ट एड करेगा। और इसी तरह से उनके लिए प्रॉपर इलाज की सहूलियत मुयस्सर नहीं है, और इसी तरह से बहुत सारे और भी काम हैं जो उनको जरूरत है वहां पे, लेकिन वो वहां पे उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जाते। रोज की रोटी जो है वो मुश्किल है। हम सब लोग यहाँ पे जो आए हैं मकसद यही है कि वो बच्चे और वो माँ बाप और वो लोग उन तमाम सहूलियतों से मुयस्सर हों, और वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं और वो भी उन तमाम सहूलियात के हकदार हैं। थैंक यू। So we may start. And blessed and love for America, for keeping all students on their coming back again in the middle of July. मेरी तरफ से आपको सलाम और दुआ और मोहब्बत, और जैसा कि अमेरिका के अंदर जो है मैं रहता हूं उसकी तरफ से उनकी आज़ादी का महीना भी है, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे।
It is my desire to labor and love and laugh with you all from your churchyard when I come. Yes, you may continue, brother. It is my desire to labor. It is my desire to labor with you in your churchyard when I come. میرے یہ دل کی خواہش ہے کہ جب میں آؤں تو میں پاکستان میں بٹے کے پر جو مزدور جیسے کام کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ مل کر کام کروں. We all know that all of creation is fallen. From the beginning when Adam and Eve believed Satan did not believe God, all of mankind has been held by the devil for ransom. ہم جانتے ہیں کہ جب تخلیق کی گئی اور آدم کو اور ہوا کو بنایا گیا تو اس وقت جو ہے شیطان پر جو ہے آدم اور ہوا نے یقین کیا اور پھر ایسا ہوا کہ تمام انسان جو ہے وہ گناہ میں گر گئے, گناہ کے غلامی میں چلے گئے, شیطان کے ظالمانہ غلامی کے اندر چلے گئے. But the eternal Son of God paid the price of that ransom, not with the blood of cows and blood of bulls and the blood of goats, but with his own blood, the Lamb of God, Jesus Christ, to take away the sins of the world. اور میں اپنے ایمان کے عقیدے سے کہتا ہوں کہ جب اس گناہ کو نکالنے کے لیے کوئی اور سبب نہ بنا تو خدا کا پیارا, اس کا حبیب, اس کا بیٹا وہ زمین پر آیا, اس نے ہمارے لیے جان دی اور ہمیں گناہوں سے چھڑایا. Jesus said that he said, greater love is no one than this, and to lay his life down for his friends, and Jesus calls us his friends. یسوع مسیح نے فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہوئے اپنی جان تک دیتا ہے, اور اسی طرح حضرت عیسیٰ نے, یسوع مسیح نے ہمیں اپنا دوست بھی کہا. بیٹی بینش جو ہے چند الفاظ میں بتائے گی کہ وہ کہاں پر ہے, کیا کام کرتی ہے اور کہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام بینش ہے اور میرے والد صاحب کا نام صابر نصیب, میری والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے, اور میرے ماں باپ بیمار رہتے ہیں اور ہم بھٹے پر کام کرتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک, اور فریڈم کرائے ہمیں پڑھاتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کیا کہ آپ میرے دل کا یہ خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں, اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں پڑھ لکھ کے ضرور ڈاکٹر بنوں گی. اور میں فریڈم کرائے کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے, اور میرے دل کا یہ خواب ہے کہ فریڈم کرائے اور آپ سب لوگ مل کے میرے اور میرے جیسے تمام بچوں کی مدد کریں. شکریہ. Respected President of Freedom Drive Pakistan, Sir Nadeem, co-founder Sir Tahir, and also co-founder Sir Shafaq, all respected teachers of Freedom Drive Pakistan, good afternoon. میرا نام زبیر عبداللہ ہے. ہم آج بھائی ہیں جن میں میں دوسرے نمبر پر ہوں. مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا, لیکن میرے بابا نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا, بلکہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو, اگر تم کام نہیں کرو گے تو ہم سب کھائیں گے کہاں سے. میں بڑا ہو کر پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں. میں اپنے باپ کے ساتھ رات کو 1 بجے کام پر اٹھ کر جاتا ہوں تاکہ مجھے اسکول آنے کا ٹائم اور میں پڑھ سکوں. موقع عطا کیا تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں. So thank you so much Brother Randall, Philip, thank you so much Sir Nadeem, thank you so much Sir Tahir, thank you so much Sir Shafaq. All respect. Pakistan Zindabad, Freedom Drive Zindabad. I was born at the backyard. International Secretary to my parents' dad. I help my parents to work with them
मेरा जो प्रश्न है जो मैं काम करती हूँ इसके साथ साथ है मेरे माँ बाप के कई और अस्तित्व में और सड़कों में भी वो काम करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है मैंने उन्हें सारी जिंदगी काम करते देखा है और हम इतना जिंदगी बसर करते हैं। मुझे 3 मार्क्स करने का बहुत शौक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये वो आदम टीचर जो मुझे स्कूल दे रहे हैं, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब मैं अमीर में ना रहूँगी बल्कि 3 हासिल करके इस मुल्क की हिम्मत करूँगी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। का मिलता जो ना तामीरों में, खून मजदूर का मिलता जो ना तामीरों में, ना हवेली ना महल ना घर होते, सरों पे ओढ़ के मजदूर धूप की चादर, खुद अपने सर पे से साहिबान समझने लगे। मेरा नाम सदफ शहजाद है और गुज़श्ता 2 साल से मैं फ्रीडम स्कूल सिस्टम की टीम का हिस्सा हूँ और टीचर के तौर पर भट्टे के बच्चों को तालीम दे रही हूँ। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। मैं गुज़श्ता 4 साल से भट्टे पर रह रही हूँ और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि भट्टे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल तरीन अमल है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर सुबह से शाम तक सर्दी गर्मी धूप छांव में सख्त तरीन मेहनत करते हैं और एक मजदूर को 1000 ईंट का सिर्फ 1000 रुपया मिलता है, जबकि सरकारी रेट 1850 है। तेरी जमीन पे करता रहा हूँ मजदूरी, तेरी जमीन पे करता रहा हूँ मजदूरी, है सूखने को पसीना मुआवजा कहाँ है। भट्टे का मालिक घर के सिर्फ मर्द हजरात को उसकी उजरत का मुआवजा देता है, जबकि घर की औरत को कुछ भी मुआवजा नहीं दिया जाता। इसी वजह से अक्सर वो लोग फाका कशी भी करते हैं। मुफलिसी हिस्से लताकत को भुला देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी में कोई बात सुनो, रोज बच्चों को जो भूखा हिसला देती है। हमारे पाकिस्तानी आइन में मजदूरों के राइट्स क्या दिए गए हैं, क्या हम लोग मजदूर जानते हैं? हमारे पाकिस्तानी आइन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 में आर्टिकल 11 में लेबर लॉ के बारे में कुछ दर्ज किया गया है, जिसमें लेबर लॉ के में दर्ज है कि स्लेवरी चाइल्ड लेबर पर पाबंदी आयद है। आर्टिकल 17 हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनमें ये दर्ज है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से एसोसिएशन यूनियन बना सकता है, जबकि हम लोग इस बारे में ज़्यादातर मजदूर नहीं जानते। फिर उसके बाद हम ये भी नहीं जानते कि हमारे आर्टिकल 18 में क्या दर्ज है। एक मजदूर या कोई शख्स अपनी मर्जी से लाफुल प्रोफेशन चूज कर सकता है, लाफुल ट्रेड लाफुल बिजनेस कर सकता है। पाकिस्तान के जितने भी भट्टे मजदूर हैं, इन राइट्स में से किसी पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही हमारे हुकूक और उजरत हमें पूरी मिलती है, जो कि सरकारी रेट 1850 रुपये है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करती हूँ कि हमारे मजदूरों के राइट्स हमें दिए जाएं और हमारा सरकारी रेट जो कि 1850 है उसके मुताबिक हमारी मजदूरी हमें दी जाए। आखिर में मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। हुस्न मासूम से चेहरे तलाशी रिस्क में गुम है, हुस्न मासूम से चेहरे तलाशी रिस्क में गुम है, जिन्हें तकलीफ पकड़ना थी जिन्हें बागों में होना था। थैंक यू सो मच। स्कूल की टीचर हैं टीचर नजमा, वो साहिवाल में हड़प्पा के अंदर जो मुख्तलिफ भट्टे हैं वहाँ पर जो है बच्चों को तालीम दे रही है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करें। चंद लम्हा
मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जमा कराए। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। मैं फ्रीडम राइट टीम की शुक्रगुजार हूँ जिसके वसीला से हम यहाँ पर पहुँचे। मेरा नाम नजमा नाजर और मैं फ्रीडम राइट स्कूल की टीचर हूँ। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें करना चाहूंगी जिसकी आज के दौर में बहुत अहमियत है कि मैं एप्रिशिएट करती हूँ फ्रीडम राइटिंग को जिन्होंने बच्चों के बारे में सोचा। जो तालीम हासिल नहीं कर सके वो फ्रीडम राइट स्कूल के जरिए से पढ़ सके, कुछ बन सके, अपने ख्वाबों को पूरा कर सके और अपने वालिदैन का सहारा कर सके। मैं हम बच्चों पर जाकर बच्चों को मुस्लिम तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हैं जो आज के दौर में एक अहम बात है। हम बच्चों पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं या हम पढ़ाते हैं। जब हमने तालीमी निज़ाम को शुरू किया तो देखा कि बच्चों को तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। वो सीखना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन हालात की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके वालिदैन बड़ी मुश्किल से लोग की रोटी पूरी करते हैं। हालात की वजह से वो खेल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। जैसे शहर या गाँव के बच्चे पढ़ते और खेलते हैं। बच्चों भी काम करना शुरू कर देते हैं। अभी उनकी उम्र नहीं होती। 2-3 साल की उम्र में भी लोग खेलना छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी बहुत की बात है कि फ्रीडम राइट ने तालीमी निज़ाम को शुरू किया और आज इसके वसीला से बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाए और उनको उनके बुनियादी हुकूक दिए जाए। और आज मैं बच्चों मालूमात के लिए गुजारिश करती हूँ कि वो इस काम में हमारे साथ काम करें ताकि बच्चे तालीम हासिल करके एक रोशन मुस्तक़बिल बन सकें। और अब तो काफी वजह से लोगों में काफी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है और लोग जान दें कि खुदा कौन है और हमारे लिए रोजगार की जरूरत रखता है। और वो ये भी जानते हैं कि आज के दौर में तालीम हासिल करना कितना जरूरी है। मैं अपने फ्रीडम राइट को एप्रिशिएट करती हूँ जो बच्चों को अपनी तालीम दे रहे हैं। थैंक यू फ्रीडम राइट। तालीम एक ऐसा खजाना है जो कभी कम नहीं होता। तालीम एक ऐसा खजाना है जो कभी कम नहीं होता। इसको जितना भी बढ़ता जाए कभी खत्म नहीं होता। गॉड ब्लेस फ्रीडम राइट, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस फ्रीडम स्कूल सिस्टम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आप सबको सलाम। मैं फ्रीडम राइट पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम बात करना चाह रहे हैं भट्टा मजदूर के हुकूक के बारे में। हमारे यहाँ पे मकसद किसी को टीज करना, थ्रेट करना या किसी के खिलाफ खड़े होना नहीं है। हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ हुकूक पाकिस्तान को, भट्टा मजदूर को सिर्फ याद दहानी कराना है कि जो भट्टा मजदूर है उनके जो के लिए प्रोग्राम करवाए जाते हैं, तकरीर करवाए जाते हैं, वो सिर्फ उनके हुकूक के लिए। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि भट्टे बंद कर देने चाहिए। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं भट्टा मालिकान के लिए कि जो हमारे लोगों के लिए रोटी रोटी का वसीला बने हुए हैं। बस आपसे अपील है, गुजारिश है कि जब आप किसी मजदूर की उजरत, किसी मजदूर को उजरत पे लेते हैं या कहाँ से लेते हैं तो खुदा उनकी उजरत का खास ख्याल रखना चाहिए। उनका पसीना सूखने से पहले उनकी उजरत दे दी जाए, उनका हक न मारा जाए, उनकी हक तलफी न की जाए, उनका हक डुबोया न जाए। हक डुबोने से मुराद आप सब जानते हैं कि मालिकान भी जानते हैं, मजदूर भी जानते हैं कि इस वक्त जो प्राइस रेट है वो अच्छे चल रहे हैं। 1000 ईंट निकालने पर 1850 रुपए उन्हें दिए जाते हैं, जबकि मजदूर तक 1000 या 1900 रुपया दिया जाता है। तो ये सरासर जाती है मजदूर के साथ।
तो खुदा आप उनकी स्ट्रगल को देखे, उनकी मेहनत को देखे, उनकी जद्दोजहद को देखे, और उस मेहनत में जो आने वाली परेशानी है, मुसीबत है और जो तकलीफ है, उन पर गौर फिक्र करें। इन सारी मजदूरों के जो हुकूक है उसमें उन्हें कोई भी हुकूक नहीं मिला जाता, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लोगों के सर पे बात की जाए तो इन मुश्किलात का भी सामना किया जाता है। गुर्बत की बात की जाए तो यहाँ पर भी आके उन्हें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। मगर मेरे साथ ही कहना है कि इन सारे मामलों का हल सिर्फ एक ही है, वो है एजुकेशन, वो है स्टडी। तालीम हासिल करके ही हम अपने हक़ाइक़ को हासिल कर सकते हैं। मैं फिर की नहायत शुक्रगुज़ार कि उन्होंने आज के ना सिर्फ तकरीर रखी, ना सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि इस पर गौर किया और उसको अमल में लिया। पूरे पाकिस्तान में हमारे तकरीबन 15 से 20 स्कूल चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मुख्य शहरों में इनके स्कूल चल रहे हैं और भट्टा मजदूर के बच्चों को तालीम दी जा रही है। तालीम देने का मकसद ताकि वो पढ़ जाए, पढ़ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपने माँ बाप को सपोर्ट करे। जो अपने माँ बाप को भट्टे से निकालेंगे तो वो एक खानदान को निकाल रहे होंगे, तो एक खानदान को निकाल रहे होंगे तो हमारा मुल्क जो है सरकारी और तरक्की करेगा। शुक्रिया। को भागते हुए मजदूर कानूनी रास्ता तैयार करने से भी डरते हैं और उनके इसी डर, अनपढ़ और बेबसी को देखते हुए बड़ा भारत मुफ्त में नाजायज मिले बहानों से उनके खातों में इजाफी रकम भी लिख देते हैं, जो कि उनके आने वाले चंद सालों के लिए काफी होती है। और इस तरह की इस पेशी रकम का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बनता जाता है। हत्ता कि इन मजदूरों में से कुछ ने कर्ज उतारने के लिए अपने आजाद तक भी फरोख्त किए। जो है वो भट्टों पर आगाही देता है उनके राइट्स के बारे में कि उनके क्या राइट्स हैं, जो मजदूर के क्या राइट्स होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं और उनको क्या क्या सहूलियात जो है वो मुहैया होनी चाहिए। करना चाहते हो कहाँ पढ़े ये बताओ, बड़े होकर क्या करना है आपने और बच्चे के ऊपर जो पढ़ाई है किसी और बच्चे का नाम क्या? जवेरिया। अच्छा जवेरिया बेटा ये बताओ कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, जिंदगी में क्या करना चाहते हो और बच्चे के ऊपर जहाँ करते हो वहाँ पर पूरी कैसी होनी चाहिए, जैसे आपने पहले बताया। बोलो आपको पूरी लाइन बोलनी है। मैं एक बच्चे की जिंदगी करेंगे बहुत थैंक यू।